Let us move ahead to next question, question number 15. For a particle performing linear simple harmonic motion, its average speed over one oscillation is. Averages normally इंटीग्रेशन से हम लोग फाइंड करते हैं normally, पर क्योंकि ये ऑसिलेशन का क्वेश्चन है तो इसमें हम डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं प्रोवाइडेड यू नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम सिंपल। तो अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना है इट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। For a particle performing SHM, what is the total distance traveled by particle in one oscillation? 4a, 4 times of amplitude. So total distance is 4a and time period is capital T. What is 1 upon time period? Frequency. So 4a 10. Done. Option number B. Simple question. अगला क्वेश्चन, a mass is suspended from a vertical spring which is executing SHM of frequency 5 Hz. हमारे पास एक मास है which is suspended from a rigid support with a vertical spring. So this is a support and इसके नीचे हमने एक vertical spring लगा दिया. We have a vertical spring below it. और इसको हमने एक मास अटैच कर दिया. तो देयर इज अ मास अटैच टू दिस वर्टिकल स्प्रिंग. नीचे एक मास है, सम मास n, एंड दिस परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 हर्ट्ज. 5 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी दिया है, मतलब n की वैल्यू दी है. इफ यू नो n यू कैन फाइंड आउट टाइम पीरियड बिकॉज़ टाइम पीरियड इज 1 upon n. The spring is unstretched at a highest point of oscillation. Unstretched at highest point of oscillation मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने स्ट्रेच किया और रिलीज कर दिया. So you are stretching it and releasing it, right? So this block जैसे ही छोड़ दिया आपने, it performs SHM. It is unstretched at highest point of oscillation. Highest point of oscillation को मैं मान लेता हूँ this is the highest point of oscillation. The spring is unstretched. Unstretched मतलब the spring does not exert any force. मतलब बेसिकली इक्विलिब्रियम है. इन शॉर्ट ये आपको पता होना चाहिए. अनस्ट्रेच्ड मतलब इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम मतलब restoring force provided by spring is perfectly balancing weight of the mass. What is restoring force? Minus k. Magnitude is k x. X के ऊपर लिखूंगा मैं a. एम्पलीट्यूड क्यों? Why amplitude? Highest point. Highest point मतलब extreme position. Extreme position मतलब x equal to a. It is balancing what? Weight. What is weight? Energy. तो याद रखना highest point या lowest point ये extreme positions होते हैं. Highest point, lowest points are extreme positions and extreme position मतलब x is equal to a. So the spring is unstretched, मतलब restoring force is balancing weight of the object. Then यहाँ से I will just keep this for time being equation number 1. या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो A equal to mg by k equation number 1 ऐसा भी लिख सकते हो. आगे क्या बोला है? आगे बोला है maximum speed of the mass is and take G value as 10. आपको पूछा है maximum speed. What is maximum speed of particle performing SHM? A ओमेगा. तो आपको Vmax मतलब A ओमेगा चाहिए. Good. Then ओमेगा तो पता है. What is ओमेगा? 2 pi n. 2 pi n. ओमेगा is 2 pi n. मतलब 2 pi into n. मतलब 2 pi into n is 5. मतलब 10 pi. अगर आपको A मिल गया तो डन. A कैसे मिलेगा? You don't know what is n, you don't know what is k. पता है क्या? K by m is omega square. Okay, fine. So k by m is omega square. So A equal to G by k by m. What is this? Omega square. So A equal to G by omega square.
जी की वैल्यू कितनी है 10, ओमेगा की वैल्यू क्या आई 10 पाई, तो 10 पाई का स्क्वायर मतलब a will be equal to amplitude a will be equal to 10 upon 10 square pi square, cancel and cancel, तो 1 upon 10 pi square. Therefore Vmax equal to a omega, या तो आप ऐसा भी कर सकते थे a g by omega square, अगर आपको कैलकुलेशंस कम करने हैं दिस इज बेटर थिंग टू डू. Vmax is a omega, but a is g by omega square into omega. एक ओमेगा हो गया, कैंसल आउट. तो g by omega, what is g value 10, what is omega value 10 pi, 10 and 10 cancel, so what is Vmax 1 upon pi, 1 by pi, option number D, meter per second. Simple question. So keep it extremely simple as you can. तो shortcuts है, yes है, यही method है, but you can just put all this in very simple form. For example, जैसे आपको पूछा था maximum velocity, तो a ओमेगा, then a मैंने अभी भी बताया, a कैसे फाइंड करोगे, k a equal to mg, a equal to mg by k, m by k is 1 upon omega square. ये m जो है ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जाएगा, तो k by m is omega square. So therefore this Vmax will become a, but a is g by omega square into omega. एक omega is going to cancel, g की value 10. This is 2 pi n is 5. 2 5 are 10, 10 और 10 cancel, so answer is 1 upon 5. So this is how you can solve. बहुत सारे books में बहुत lengthy करके रखा है, no point in doing all this lengthy calculation, क्योंकि वहां पे एनर्जी को इक्वेट किया फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी कंजर्वेशन की जरूरत नहीं है यहाँ पे, जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड एट हाईएस्ट पॉइंट इफ द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स इज परफेक्टली बैलेंसिंग एनर्जी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम इक्विलिब्रियम, मतलब x equal to a sin omega t and its time period is 16 seconds. After 2 seconds, 2 सेकंड के बाद its velocity is 5 meter per second. Amplitude of the oscillation is. अब अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से देखोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल you have been given about information about from where the particle is starting. So x equal to a sin omega t. Number 2, you have been given velocity information, that is 5 meter per second after how many seconds? 2 seconds. So can you find the velocity from here? Simple. It is just dx by dt. या फिर omega root of a square minus x square. So this is d dt of x, मतलब a sin omega t. So v equal to a outside, sin का डेरिवेटिव आता है cos omega t into omega. क्लियर. देन आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है एम्पलीट्यूड मतलब ए. देन यू हैव बीन गिवन सर्टेन इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जांपल क्या क्या बताया है आपको बताया है व्हाट इज टाइम पीरियड. टाइम पीरियड पता तो क्या मिल जाएगा ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा 2 पाई बाय टी. और आपको बताया है वेलोसिटी, तो एट t इक्वल टू 2 सेकंड व्हाट इज वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड. सब्स्टिट्यूट कर दो. Put pi equal to a omega, but omega is 2 pi by time period. Cos of omega is 2 pi by time period into t. This t is 2 seconds. Correct? ये pi और ये pi cancelled out. This pi and this pi cancelled out. 1 equal to a by time period. Time period is 16. Cos of 2 into 2 4 pi by time period is 16. 1 by and what is cos of pi by 4? 1 by 2 रहेगा, तो वो 2 को लिख देंगे यहाँ पे रहेगा तो. but what is cos of pi by 4? 1 by root 2. तो this is 1 by 8. ये 8 को शिफ्ट कर दो. 8 equal to a cos of pi by 4 is root 2 ना, 1 by root 2.
1/√2. So what is a√2? a√2 what? मीटर, क्योंकि वेलोसिटी किसमें था? मीटर पर सेकेंड। तो a√2 मीटर, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोक बताओ। Particle performing as a chain starting from extreme position. Graphical representation shows that between displacement and acceleration there is a phase difference of pi. Displacement and velocity is pi/2 velocity and acceleration is pi/2. Displacement and acceleration is pi. So option number D done. Extremely simple question. दूसरी तीसरी बार रिपीट हो रहा है, तो you should not leave such marks, 3 marks. Next question. A particle performs linear simple harmonic motion at a particular instant. Velocity of the particle is u and acceleration is alpha. While at another instant, velocity is v and acceleration is beta, where alpha is greater than 0 but less than beta. The distance between the two positions is. Good question है, अच्छा question है, JEE NEET level का question भी है ये साथ में। A particle मतलब सिंगल पार्टिकल, दो पार्टिकल की बात नहीं हो रही यहाँ पे। You have a single particle which is performing simple harmonic motion at a given instant, at a particular instant. Velocity of the particle is u, acceleration is alpha. हमको तो ऑलरेडी पता ही है, particle when it is at mean position it has the highest velocity in omega. When it is at extreme position it has the lowest velocity, that is 0. मतलब particle when going from mean to extreme changes its velocity as well as its acceleration, क्योंकि acceleration is also 0 कहाँ पे? मीन पे, और एक्सट्रीम पे इट माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। तो सबसे पहले अगर आपको मोशन का इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। आपको मोशन अच्छे से समझा होगा तो ही क्वेश्चन समझेगा, नहीं तो क्वेश्चन भी नहीं समझ में आएगा। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यू शुड नो इज दैट simple harmonic motion is accelerated motion in which velocity as well as acceleration changes from position to position. So at some instant of time t1, let the particle is at position x1, and when it is at x1 its velocity is u, and when it is at x1 its acceleration is alpha. So in short I can make a table out of it। एक टेबल ही बना देंगे, तो हम लिख देंगे इंस्टेंट ऑफ टाइम, टाइम इंस्टेंट t1, तब इसका पोजीशन कितना था? x1, तब इसका वेलोसिटी कितना है? u, और इसका एक्सेलरेशन कितना है? अल्फा, राइट। देन एट सम अदर इंस्टेंट, at a later instant of time its position is x2. So at time t2 the position is x2, velocity is v and acceleration is beta, such that alpha is greater than 0 but less than beta. अब इसका क्या मतलब है? ये why are they telling you this? ऐसा ही तो नहीं लिखा होगा ना, there is something that is hidden here. Why? ओ गुड, मतलब x1 जो पोजीशन है, जब वेलोसिटी u था, एक्सेलरेशन अल्फा था, इट इज बिटवीन मीन एंड द अदर पोजीशन। क्यों? क्योंकि मीन पे ए क्या होता है? 0। क्या होता है? एक्सट्रीम पे क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। मैग्नीट्यूड क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर ए। मतलब यहाँ पे 0 और एक्सट्रीम पे ओमेगा स्क्वायर ए, और इन बिटवीन एक पॉइंट है जहां पे अल्फा, दूसरा पॉइंट है जहां पे बीटा। अल्फा की वैल्यू बीटा से ज्यादा है, 0 से कम है, मतलब पार्टिकल मीन और x2 के बीच में था टाइम t1 पे। इन शॉर्ट अभी भी नहीं समझ में आया होगा तो यू हैव टू अंडरस्टैंड मोशन। मीन पोजीशन रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम वेलोसिटी एंड 0 एक्सेलरेशन, एक्सट्रीम पोजीशन रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन एंड 0 वेलोसिटी। अब उन्होंने दो पोजीशन बताए, वो दोनों पोजीशन मीन और एक्सट्रीम के बीच में है, एक है x1 एक है x2। अब x1 पे अल्फा एक्सेलरेशन है और x2 पे बीटा है, करेक्ट।
अब अल्फा मतलब x1 पोजीशन पहले लेना है कि बाद में लेना है, क्योंकि ये x1 पोजीशन, दिस x1 पोजीशन में यहाँ पे भी तो ले सकता था ना। हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि x1 x2 से पहले लोगे कि बाद में लोगे? लुक एट अल्फा, अल्फा अल्फा की वैल्यू 0 से ज्यादा लेकिन बीटा से कम। जैसे जैसे एक्सट्रीम की तरफ जाओगे तो एक्सीडेंट बढ़ता है, तो ज्यादा एक्सीडेंट किसका है? बीटा। मतलब x1 इज टू द लेफ्ट ऑफ x2। समझ में आया? उल्टा कर दिया अलग, इफ आई डू इट अदर वे राउंड, तो x1 इज टू द राइट ऑफ, अरे x1 इज टू द राइट ऑफ x2। रिमेंबर दिस। अगर ये नहीं समझ में आया तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे? व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन दीस टू पोजीशन x2 माइनस x1? अगर x1, अगर ये x1 टू द राइट होता तो क्या फाइंड करते? x1 माइनस x2। तो हर एक छोटा छोटा इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैटर करेगा। अगर ये नहीं समझ में आया तो गए काम से। तो x2 माइनस x1 फाइंड करना है कि x1 माइनस x2 फाइंड करना है, वो समझ में नहीं आ रहा, तो क्या फाइंड करना है? x2 माइनस x1। तो ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए था कि x2 माइनस x1 फाइंड करो, नॉट x1 माइनस x2। एंड इफ यू लुक एट द ऑप्शन, माइनस प्लस गए, छोटी सी गलती की तो गए काम। गुड, बिकॉज x2 माइनस x1 विल बी माइनस ऑफ x1 माइनस x2। चलो ठीक है, इतना तो पता है, इतना पता है तो यही सॉल्व कर लेंगे अब। तो रिमेंबर योर टास्क इज टू फाइंड x2 माइनस x1। क्या फाइंड करना है? x2 माइनस x1। लाओगे कैसे सब? यू नो what is given to you? Velocity and acceleration. You know what is velocity का जनरल फॉर्मूला? राइट, ये जनरल फॉर्मूला है। So what will be v square omega square a square minus, so remember this is general formula. So at x1 वेलोसिटी कितना था? वेलोसिटी कितना था? u था। तो v के पे क्या लिखूंगा मैं? u स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। at x2 v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। क्या फाइंड करना था हमको? x2 माइनस x1। सब्ट्रैक्ट कर लो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर लेते हैं। तो u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, व्हाट इज u स्क्वायर? ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। मैं एक काम करता हूँ अब, क्योंकि माइनस कर ही रहे हैं तो ब्रैकेट को हटा दो यहाँ से। Let's remove this brackets. ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर, और आएगा ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर। अब समझा कैसे कि माइनस करना है? मैं वापस बोल रहा हूँ बार बार, लुक क्या फाइंड करना है? ये मैं जब माइनस करूंगा तो माइनस x1 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो माइनस x1 और प्लस x2। गुड, ठीक है। तो यू विल गेट u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, ये हो गया आंसर। माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर, राइट। क्या कॉमन निकलेगा वहां पे? ओमेगा स्क्वायर। तो u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर कॉमन माइनस x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, x2 square minus x1 square. What is a square minus b square? A minus b into a plus b. So u square minus b square equal to omega square x2 minus x1 into x2 plus x1. x2 plus x1. Can I write down this x2 plus x1 here? Divide कर सकते हैं क्या? Yes. So yes, and can you also write down this here? Yes. तो मैंने क्या किया, फिर वहां से x2 माइनस x1 को एक साइड पे छोड़ दिया, बाकी सब शिफ्ट कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्या फाइंड करना था? x2 माइनस x1, तो दैट इज व्हाई। now तो क्लियर। अब मोर और लेस यू आर वेरी नियर टू द आंसर। u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, मतलब पक्का है अब,
पक्का है कि कम से कम ऑप्शन नंबर ए और सी, देखते हैं, चेक करते हैं, विल चेक। अब प्रॉब्लम ये है कि न्यूमरेटर तो हमको मिल रहा है सही, न्यूमरेटर यू आर गेटिंग u square minus v square, yes. How about denominator? You're not getting anything from the denominator. Acceleration, acceleration का इक्वेशन क्या है? ओमेगा स्क्वायर माइनस के प्लस। तो जनरली इन जनरल इक्वेशन नंबर 3 बोले तो इसको, इन जनरल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स at x1. What is acceleration? Alpha. Therefore, alpha equal to minus omega square x1 and beta equal to minus omega square x2. What will be x1 from here? Minus alpha upon omega square, equation number 4. What will be x2 from here? Minus beta upon omega square, equation number 5. ये 4 and 5 कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे? 3 में, बराबर, करेक्ट है ना? a माइनस ओमेगा स्क्वायर है, x1 पे a कितना था? अल्फा, x2 पे a कितना था? बीटा। तो x1 और x2 मिल गया, सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर 3 में। तो substitute x1 and x2 in equation number 3. Therefore, x2 minus x1 equal to, और again do not lose the track, क्या फाइंड करना है? हाँ, तो इधर नहीं सब्स्टिट्यूट करना, कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे? ऑन द अदर साइड, दूसरे साइड पे। नहीं तो जो फाइंड करना है वहीं पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, हो गया चलो। डू नॉट सब्स्टिट्यूट हियर, सब्स्टिट्यूट यहाँ पे। व्हाट इज x2? What is x2? Minus beta upon omega square minus alpha upon omega square। क्या कॉमन निकलेगा? नहीं, माइनस आएगा, माइनस आएगा। ये प्लस था लेकिन x1 क्या है? माइनस है, तो माइनस आएगा। Therefore x2 minus x1 equal to u square minus v square upon omega square। क्या कॉमन निकला? माइनस माइनस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? बीटा, बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा, ओमेगा स्क्वायर आंसर। अब ये माइनस ऊपर चला गया तो जो माइनस है वो प्लस और जो प्लस है वो माइनस, तो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा। अब ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं, है क्या? है? नहीं है? नहीं है ना? नहीं है ना? गुड, तो नहीं है तो एक काम करना, अगर नहीं है तो इसको माइनस साइन को बाहर ही लिखो, माइनस साइन को बाहर लिखो, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा, बराबर, करेक्ट। आपको क्या पूछा है? पूछा क्या था? द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, ऑप्शन नंबर ए, डन। तो यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा, हमारे पास डिस्टेंस नेगेटिव आया लेकिन डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, तो यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा। यहाँ तक क्लियर? गुड। तो गिवन इंफॉर्मेशन क्या था? टाइम t1 पोजीशन x1 वेलोसिटी u एक्सेलरेशन अल्फा, टाइम t2 पोजीशन x2 वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन बीटा। वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है? ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और अल्फा क्या है? माइनस ओमेगा स्क्वायर x। तो दोनों इंफॉर्मेशन यूज करना है, वेलोसिटी का इक्वेशन यूज करना है, वहां से दो इक्वेशन मिलेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ए का इक्वेशन यूज करना है, दो इक्वेशन मिलेंगे x1 और x2, वो उठा के रीसब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 3 एंड सॉल्व, एंड यू विल गेट u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा। डन। So remember, distance is never negative. This is one thing that you can do. या फिर ये माइनस साइन एब्जॉर्ब कर लो। इफ यू एब्जॉर्ब दिस माइनस साइन, ये u की जगह पे v, v की जगह पे u, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर ऐसा करना है तो फिर गो टू क्वेश्चन एंड चेंज
here v square minus u square. This is much better off. क्यों? क्यों? क्योंकि हमको पता है कि बीटा अल्फा से ज्यादा है, तो हमको ये भी पता है कि x2 x1 से ज्यादा है, तो x2 माइनस x1 नेगेटिव आ ही नहीं सकता। दिस इज ऑलरेडी व्हाट वी नो। या फिर या फिर वो हमने मीन के लेफ्ट हैंड साइड पे लेना चाहिए, राइट? तो दोनों में से एक केस, नहीं तो आप मीन के लेफ्ट हैंड साइड में लोगे देन इट इज करेक्ट, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर देयर इज नो इशू विद द आंसर। इन एनी केस, डिस्टेंस है, नेगेटिव साइन को ड्रॉप कर लो, चलता है। तो दिस इज व्हाट यू कैन डू। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम performs SHM with period t in air. You have a simple pendulum. Simple pendulum, practical simple pendulum में एक string होता है and there is a bob, metallic bob attached to one end of the string. It is oscillating in air with time period t and with time period t1 in water. Same pendulum है। पहले हमारे पास pendulum था, we had a pendulum which was oscillating in air. So let's say we have a pendulum, some pendulum, practical pendulum which is oscillating in air. Time period is t. Now the same pendulum is oscillating in water and the time period is t1. So यहाँ पे water है, it is completely filled with water, let us say. Neglecting upthrust, आई अपथ्रस्ट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, देखते हैं, विल सी। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे, बाद में समझेंगे। तो इन दिस केस टाइम पीरियड इज t1, रिलेशन बिटवीन t एंड t1 इज, तो टाइम पीरियड इन एयर एंड टाइम पीरियड इन वाटर का रिलेशन क्या है? निग्लेक्ट फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर, फ्रिक्शन मतलब ड्रैग। डू यू रिमेम्बर सेकंड चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड? हमारे पास एक बॉल था विच इज फॉलिंग थ्रू लिक्विड, स्टोक्स लॉ 6 पाई eta RV, वो था फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू ड्रैग, तो उसको निग्लेक्ट कर दो, लीव इट, डू नॉट कंसिडर दैट। डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ बॉब इज 9/8 into 10⁻³ 9/8 approximately 1, तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब समझ लो, जो भी है वो। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सीसी, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सीसी, 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। गुड। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन t1 एंड t? तो जिनको अभी भी क्वेश्चन नहीं समझा है, वापस एक बार समझा देता हूँ। कुछ नहीं है, एक पेंडुलम है, ऑसिलेट हो रहा है, पहले एयर में ऑसिलेट हो रहा था, टाइम पीरियड था t। अब सेम पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग इन वाटर, नाउ द टाइम पीरियड इज t1। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन t1 एंड t? So first of all, to solve this question, you must know what is the equation of time period of a pendulum. What is the equation of time period? 2 pi under root of L by G. I will just write down this as G effective. Then लेंथ तो कांस्टेंट है, लेंथ जो यहाँ था वही लेंथ यहाँ पे भी है, तो टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ G effective, correct? Then t1 by t equal to root of inverse related है। t1 is time period when there is water in the surrounding and t is time period when there is air in the surrounding। तो यहाँ पे मैं एक काम करूंगा, what I will write down this as, इसको मैं बोल देता हूँ g1, इसको मैं बोल देता हूँ g। सिंपल, क्लियर? यहाँ तक क्लियर? नहीं समझ में आया तो नोटिफिकेशन चेंज करना पड़ेगा मुझे। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड दिस। यहाँ तक क्लियर है? पक्का? हाँ, तो फिर अब t is inversely proportional to root of g, so t1 by t is root of g upon g1, where g1 is acceleration due to gravity when the surrounding medium is water। यहाँ तक क्लियर? Now the question here is, ये g1 फाइंड कैसे करेंगे? तो how do you find out g1? You know what is the formula? अब पहले ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे g कहाँ से आया है, तो you should know effective g is g सिग्मा माइनस रो बाई सिग्मा। हर बार चाहे वो एयर हो सराउंडिंग में, चाहे वाटर हो, चाहे केरोसिन हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे ऑयल हो, चाहे कुछ और हो,
always you have to use this formula where you need to remember sigma is density of the ball, density of material of ball, whereas rho is density of surrounding medium, density of surrounding medium, density of surrounding medium. मैं बार बार बोल रहा हूँ density of surrounding medium, density of surrounding medium. ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली जी क्यों लिखते हैं यहाँ पे, there's a reason behind it. बॉब मेटल का होता है, मेटल व्हाट इज डेंसिटी ऑफ मेटल, पता है, पता है व्हाट इज डेंसिटी ऑफ मेटल, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी बाय द वे, 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. वो लिक्विड है, मतलब सॉलिड का तो ज्यादा ही होगा, 20,000 मान लो, 20,000 मान लो. तो ये जो है ना, ये बहुत बड़ा नंबर होता है. कितना होता है, रफली रफली 20,000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. मैं सिर्फ रफ बता रहा हूँ, ज्यादा ही होता है, इससे कम नहीं होगा. रो इज डेंसिटी ऑफ सराउंडिंग मीडियम. अगर सराउंडिंग में एयर है, वन वॉट, वन एटमॉस्फेयर इज टेलिंग मी प्रेशर 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. एयर का डेंसिटी सिर्फ 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, और मेटल का कितना है, थाउजेंड्स में है. कितना है, थाउजेंड्स में. तो डेफिनेटली दिस रो इज वेरी वेरी लेस देन सिग्मा. तो सिग्मा माइनस रो इज अप्रोक्सीमेटली सिग्मा. तो ऊपर क्या बचेगा, सिग्मा. सिग्मा सिग्मा क्या होगा, तो ये क्या आ गया 1, तो क्या बचा जी. तो जब सराउंडिंग में एयर हो तो एक्चुअली फॉर्मूला ये है, इन रियलिटी द फॉर्मूला इज दिस, लेकिन हम लिखते क्या है जी. क्यों, क्योंकि ये क्या बन जाता है 1. लेकिन अगर सराउंडिंग में कोई और लिक्विड हो, एयर नहीं हो, तो उस केस में आप डायरेक्टली जी लिख नहीं सकते. इज इट क्लियर. तो मुझे अगर सराउंडिंग में वाटर है तो उसको हमने जी को क्या बोला है, हमने क्या बोला है G1. क्या बोला है हमने G1. तो जी इफेक्टिव जगह पे क्या लिखूंगा मैं, जी इफेक्टिव जगह पे क्या आएगा G1. तो G1 will be equal to G rho minus sigma by, sorry, sigma minus rho by sigma. So what is G1 by G then? Sigma minus rho by sigma. Therefore हमको क्या चाहिए था, T1 by T. What is T1 by T? Under root of G by G1. What is under root of G by G1? Sigma upon sigma minus rho. Are that clear? Good. पक्का. तो T1 by T equal to sigma. Sigma. What is sigma? Material of bomb कितना है, 9 by 8. 9 by 8 into 10 raised to 3 upon 9 by 8 into 10 raised to 3 minus वाटर का कितना है 10 raised to 3. 1 ग्राम पर 60 मतलब 10 raised to 3. 10 raised to 3. इसको सॉल्व करो. T1 by T equal to under root of 9 by 8 into 10 raised to 3 upon 10 raised to 3 common. 10 raised to 3 common. So 9 by 8 minus 1. 9 by 8 minus 1. 10 by 3, 10 by 3, 10 raised to 3, 10 raised to 3 cancel. What is this? 9 by 8 upon क्या 1 by 8 cancel and root of 9 कितना, तो T1 by T कितना 3. तो T1 equal to 3T. तो 3T ऑप्शन में होना चाहिए. तो ऑप्शन में 3T है क्या, 3T है. ऑप्शन नंबर ए. मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, एक बार समझ लो वापस एक बार. सिंपल क्वेश्चन. लुक, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ जी. तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम व्हेन देयर इज सराउंडिंग surrounding medium is water, in that case it will be under root of G water. clear यहाँ तक. मैं इसको T water और G water से लिखता हूँ, just not to have any confusion. clear. तो dividing these two, T water upon T, ये air का केस है, water का केस है, is equal to under root of G upon G water. correct. but अभी मैंने आपको बताया G water equal to G
सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो, ऐसा है ना, सिग्मा माइनस रो अपॉन सिग्मा। तो जी वाटर बाय जी इक्वल टू सिग्मा माइनस रो बाय सिग्मा। ये सब्स्टिट्यूट कर दो, ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो टी वाटर अपॉन टी इक्वल टू रूट ऑफ जी अपॉन जी वाटर, इट इज सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो। अब वैल्यू तो पता ही है आपको, इसको T1 बोला है, इसको T बोला है। इसकी वैल्यू कितनी है, 9/8 इंटू 10⁻³ अपॉन 9/8 इंटू 10⁻³ माइनस 10⁻³। ये आ गया 9/8 इंटू 10⁻³, ये आ गया 1/8 इंटू 10⁻³ 10⁻³ 10⁻³ 8 और 8 कैंसल, √9 is 3, तो T1/T is 3, तो T1 इक्वल टू 18। Next question. I hope it is done already. अगला question. A particle performs simple harmonic motion with amplitude 25 centimeter and time period of 3 seconds. The minimum time required for it to move between 2 points 12.5 centimeter on either side of the mean position is. एक्सट्रीमली गुड क्वेश्चन, एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन अगर आपको मोशन समझ में आया है तो, नहीं तो फिर नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ जाएंगे। ध्यान दो, ध्यान यहाँ पे आपको बोला है अ पार्टिकल परफॉर्म्स ए सेकंड विद एम्पलीट्यूड 25 सेंटीमीटर, मतलब मेन पोजीशन से एक एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्टेंस है, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, किससे, ए से। तो आपको बताया है पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना है, कितना है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। पार्टिकल परफॉर्म्स ए सेक्शन विद एम्पलीट्यूड 25 सेंटीमीटर एंड पीरियड ऑफ 3 सेकेंड। 25 सेंटीमीटर है एम्पलीट्यूड। आगे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। The minimum time required for the particle to move between 2 points 12.5 centimeter on either side, on either side, this is important। 12.5 मतलब हाफ द एम्पलीट्यूड, तो एक पॉइंट यहाँ पे लेता हूँ मैं E पॉइंट, दिस इज a/2, व्हाट इज a/2 12.5, और एक पॉइंट यहाँ लेता हूँ मैं F पॉइंट, ये भी कितने डिस्टेंस पे है a/2 मतलब 12.5। सबसे पहले क्वेश्चन को अगर इजीली सॉल्व करना है तो क्वेश्चन समझना पड़ता है, फर्स्ट इज टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन। Now, to understand question, you have to first imagine the motion of the particle. Particle goes from mean, it goes to right extreme. right extreme में जाते वक्त बीच में एक पॉइंट आया था T, कितने कितने डिस्टेंस पे है 12.5। अब यहाँ से यहाँ पे जाके यहाँ आएगा फिर यहाँ जाएगा, ये मिनिमम टाइम तो नहीं हो सकता, हो सकता है मिनिमम टाइम। तो मिनिमम टाइम कैसा होगा, इट इज गोइंग, इट गोज to the right extreme, comes back, now it is at 12.5 centimeter on one side of the mean। अब यहाँ से यहाँ जाएगा तो now it is minimum, तो A to F is minimum। मैं वापस बता रहा हूँ, अच्छे से समझ लो। पहले तो क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड 25 था, ये समझ में आना चाहिए। फिर मिनिमम टाइम, मिनिमम शॉर्टेस्ट टाइम required for the particle to move between 2 points 12.5 centimeter on either side of the mean। either side मतलब राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे कितना डिस्टेंस लेना है 12.5, एम्पलीट्यूड कितना है 25। 12.5 या 25/2 होता है क्या, होता है, तो मतलब डिस्टेंस कितना बोला है a/2 एंड a/2। तो टाइम आपको पूछा है यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगा। गुड। 15 स्टेप के क्वेश्चन को 2 स्टेप में सॉल्व कैसे करते हैं, look, first of all, simple harmonic motion is a symmetric motion। What do you mean by symmetric motion? mean से यहाँ तक आने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में लगता है। मतलब if the particle is going from mean to right extreme, the time it takes to cover distance of a/2, and when it is coming back, the time it takes to cover distance of a/2। O से E या E से O जाने में टाइम लगता है सेम। कल हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, याद है, T/12
the time taken by the particle to cover a distance of a by 2 is nothing but t by 12। मतलब कम से कम आपको ये तो पता लग गया कि यहाँ जो टाइम t है e से o तक जाने में कितना टाइम है, t by 12। o से e तक भी t by 12, e से o तक भी t by 12। और सिमेट्रिक है, जो राइट साइड में होगा वही लेफ्ट साइड में होगा। मतलब o से f तक जाने के लिए भी कितना टाइम है, t by 12। वेरी गुड। तो अगेन इट टेक्स द सेम टाइम t by 12। मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, पूरा सॉल्व करना ही नहीं है, नहीं तो सॉल्व कैसे करते। a is 25, x is 12.5, which is 25 by 2, x equal to a by 2, but x equal to a sin omega t। Therefore a by 2 equal to a sin omega t। पूरा सॉल्व करके t equal to t by 12, लेकिन एक साइड का दूसरी साइड का भी t by 12। तो ये सब करना नहीं, you don't have to do all this। So total time will be what, 2t। क्या आएगा, 2t, t by 12, e से o से f, वापस से t by 12। तो t और t कितना, 2t। तो t into t by 12, 1 and 6 t by 6। What is t, 3। What is 3 by 6, 1 by 2। What is 1 by 2, 0.5 है कि 0.5। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया क्वेश्चन। मिनिमम टाइम है, मैं वापस बोल रहा हूँ, वो मिनिमम टाइम है। अब आप बोलोगे मिनिमम और मैक्सिमम में डिफरेंस है। लुक अगेन, टोटल टाइम पीरियड कितना, टाइम पीरियड कितना, 3 सेकेंड। कितना, 3 सेकेंड। अब यहां से यहां तक आने में, ओ से ई तक आने में कितना टाइम, टाइम पीरियड बाय 12, 1 by 4, 0.25। 0.25 तो ये हो गया। फिर यहाँ से यहाँ कैलकुलेट करोगे, फिर यहाँ से यहाँ कैलकुलेट करोगे, फिर यहाँ से वापस यहाँ तक कैलकुलेट करोगे। वो मिनिमम होता है क्या, मिनिमम नहीं है। तो रिमेंबर दिस, मिनिमम मतलब e to f डायरेक्टली। तो इट इज हाउ मच, 1 by 2.5। तो अगर गलती कहाँ होती है वो भी समझ लो। नॉर्मली हम लोग हमेशा ऐसा समझ के चलते हैं कि मोशन यूनिफॉर्म ही है। अब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब टोटल टाइम पीरियड कितना है, कितना है, 3 सेकेंड। मैंने बताया था मीन से राइट एक्सटेंड तक जाने में कितना टाइम लगता है, 3/4, मतलब 3/4 कितना, 0.75। कितना, 0.75। तो आधा जाने में कितना लगेगा, 0.75/2। देखो मीन से राइट एक्सटेंड तक t/4, तो मीन से हाफ ऑफ राइट एक्सटेंड तक कितना, t/4 का हाफ मतलब कितना, t/8। कितना, t/8। ये t/8 और ये t/8 कितना हो गया, 2t/8। व्हाट इज 2t/8, t/4। व्हाट इज t/4, 0.75। आंसर 0.75 आया क्या हमारा। वो कब होता है, जब मोशन यूनिफॉर्म है। ये मोशन यूनिफॉर्म है क्या, ये एक्सेलरेटेड मोशन है। तो कभी भी बाय डिफॉल्ट समझ के चलना नहीं, यहाँ से यहाँ तक t/4, तो आधा डिस्टेंस के लिए t/8, दैट इज रॉन्ग। तो ऑलरेडी देखा हमने कितना होता है, ये t/12 होता है। So do not solve this question by considering the motion to be uniform. Done? Okay, so that's it for today.